Screen is visible, guys. So what we are going to do today is, guys, now first of all, for me to take up this course at depth, अब जो next few lectures है, what we are going to do is we are absolutely going to revise whatever you have learned in and the reason that I wanted to know is तुमने गरिमा की classes में कितना किया है. Based on that, I will go into the depth. Because I know Ashwara ma'am has now almost completed the confidence interval and she'll now be going into the other part of hypothesis. So we have to cover that in data analysis as well, but our orientation will be much more problem orientation and in terms of R and in terms of Excel में हमें कैसे करना है. But until unless उसका theory clear है, you'll not be able to figure out. Or you can type in the command, but essence में पीछे में background में कर क्या रहा है, you'll not be able to understand it. So that is where my question was that how much has been covered in Garima's classes. Have you covered unit 3, unit 4 इस कोर्स का? Come on guys, क्या चल रहा है उस क्लास में? चल क्या रहा है उस वाली क्लास में? Guys, you are attending those classes, right? Arushi, Sonal? Okay. So what I am going to do is I'm going to quickly go through. You want me to revise those concepts, guys, or you want me to just code it or just do it on Excel? ठीक है. So what I will do is I'll briefly keep on revising it. ठीक है, so that you know the concept behind it, and simultaneously because these are my decks for usually when I start with econometrics. ठीक है, so I'm basically dovetailing that econometrics. That's why I sent you the message कि इसमें whatever we are going to do from now on is going to be very useful for statistics, data analysis, econometrics, any project that you do in macroeconomics with Ganesh, and for your applied econometrics, just in case you have lost it. Now, so when we talk about statistics में हमने ये दोनों चीजें देखी हैं. एक होता है हमारा descriptive statistics. Descriptive statistics is basically just to explain that how data is. To give you an example of descriptive statistics is basically हम उसमें बता देते हैं कि अच्छा इस डेटा का मीन कितना है, ठीक है, मीडियन क्या है इस डेटा का, मोड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, वेरिएंस क्या है. ये सारी जो चीजें हैं जो for example the moment that you see a person you can describe that person. Okay, इसका height 6 फुट है. Yes, the recording is going on. इसका height, इस बंदे का height 6 फुट है. He must be weighing around 90 kgs. He's muscular or not. So that according to what you see, and similarly in terms of data, जब हम summarize करने की कोशिश करते हैं किसी sample को या even population को भी, ठीक है, जरूरी नहीं कि सैंपल को ही समराइज करते हैं, हम पॉपुलेशन को भी समराइज करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, देन एसेंशियली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जब हम ब्रॉडर एंड यूजुअली ये सैम्पलिंग के अंदर ज्यादा आता है, जब हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि गार्गी कॉलेज का इको ऑनर्स का तुम्हारे बैच का एवरेज स्कोर देख के मैं गार्गी कॉलेज के बारे में इन जनरल एक इन्फ्रेंस बना लूं कि अच्छा गार्गी कॉलेज में कितने अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एज कंपेयर टू से कमला नेहरू कॉलेज और से एसआरसीसी और से एलएसआर. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक ब्रॉड असर्शंस बेस्ड आउट ऑफ स्मॉलर सैंपल्स, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. जहां पर आप इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज वेयर यू यूज दिस. समझ में आया ये डिफरेंस? क्लियर है गाइस? देन लेट्स गो इनटू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नाउ whenever we are talking about descriptive statistics, basically we need to see how to describe the data, how to visualize the data, जो हमने विजुअलाइजेशन टूल्स देखे थे, ठीक है, एंड समराइजिंग द डेटा. तो इसके अंदर what we see is your measures of central tendency which both गरिमा and अश्वर्या मैम would have taken up, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं कि मीन मोड, मीडियन कैसा है, ठीक है, कि मेजर्स ये बेसिकली डेटा जो है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्या है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा भी हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं रेंज से, इंटरक्वार्टाइल रेंज से, ठीक है, या फिर पोजिशनल आपकी रेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ पोजिशनल रेंज और अ पोजिशनल दिस थिंग योर for example, you might have heard about your percentile, quartile, decile. ये सुना है right? Percentile तो सुना होगा, I'm sure. Yes, no. So these are all what are going to talk about your distribution of data. So that is another way to describe the data. And the third way is where you do that dispersion. That data कितना ज़्यादा spread है.
for which you see coefficient of variation, you see your variance, and which is also related to your standard deviation. Again, things that you should have, you would have definitely covered in statistics as well as in Karima's. Clear है guys ये तीनों चीजें? I'll go into each of them. Don't worry. यहाँ तक clear? Now, when we are talking about central tendency, and इसके बाद हम सीधा Excel पे आएंगे, and Excel पे देखेंगे कि how do you just find out all of these, the data set that I have sent it to you. ठीक है? Then when we are talking about central tendency measures, so basically हम central point of the word itself says that you need to find कि for example, let me give you an example in terms of कि innate nature क्या है, ठीक है? As a batsman, I mean, I'm a huge fan of cricket. So as a batsman, there are certain people who will not adapt to any condition. Any cricket fans here? Any cricket fan? No one is a cricket fan. Okay. तुम लोगों ने एक क्रिकेटर का नाम सुना है, शाहिद अफरीदी? सुना है शाहिद अफरीदी? शाहिद अफरीदी किस चीज के लिए फेमस होता था? अरे बचपन में देखा होगा शाहिद अफरीदी. अरे बैटिंग तो ठीक है, बॉलिंग उसकी मच बेटर थी बाय द वे. बट ही वॉज एक्चुअली फेमस फॉर कि वो सिर्फ आता था और उसको सिर्फ काम तो छक्का मारना. ठीक है, उसको कुछ पता नहीं है कि मैच की सिचुएशन क्या है, कि आपको 5 बॉल पे 1 रन चाहिए तो भी वो छक्का मारेगा, उसको अगर 100 रन चाहिए तो भी छक्का मारेगा. तो उसका सिर्फ एक ही सोचने का तरीका था, मैं आऊंगा और सीधा जिसको हम क्रिकेट में बोलते हैं लप्पा मारना. ठीक है, तो वो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसीज बन देगी. सिमिलरली जब हम डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को देखने की कोशिश करते हैं, तो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी 3 चीजों से पता चलती है यूजुअली. वन इज मीन, which kind of tells you the gravity of the entire data. ठीक है, and again very simple, you take all the observations and then divide it by the number of observations and you get mean. But what is the problem with mean as a central tendency value? What do you think, guys, is the problem? One of the major problems of outliers. Outliers is a very huge problem. Because it captures all the data points. At times it is also influenced by outliers. Okay, so that becomes an issue. Then you have median and mode. Median is a decent central tendency measure. But what it does is, कैसे निकालते हैं guys? Median कैसे निकालते हैं? Don't read it, but बताओ कैसे निकालते कैसे हैं इसको? फॉर्मूला क्या होता है? I couldn't hear you. कौन था? Yes, exactly what Aarti has said, कि हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को ऑर्डर करते हैं, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग. एंड व्हाट वी डू इज पोजिशनल. गाइस, दिस इज अ पोजिशनल टेंडेंसी. ठीक है, एंड n+1/2. और अगर ये इवन नंबर आ रहा होगा तो क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देर आर देन यू टेक द एवरेज ऑफ द मिडिल 2 पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल ये 5 वैल्यूज हैं. यू हैव 6, 8, 9, 18 and 20. So you have this as the value because what you have done is 5 + 1 6 divided by 2 3. तो थर्ड जो पोजीशन वाली वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन हो गई. बट अगर ये एक और इसके अंदर वैल्यू ऐड होती तो हम इसको और इसको ऐड करके इसका एवरेज ले लेते. दैट वुड हैव बीन द मीडियन वैल्यू. देन मोड, अगेन वेरी इजी, frequency, but the problem with this is these are not representative figures. They do not capture, although yes, they don't factor in the extremes, but at the same point of time, they don't factor in all values. Therefore, they have their they have their usage, but not as wide as the usage of mean. Then, apart from that, in terms of measures of central tendency, you have partition values, where you divide the entire data into equal partition. You can divide your data into 1% each, and that is called as percentile. You can divide it into groups of 5%. What is that called? Groups of 5%. पहला 5%, then next 5%, then next 5%. What is that called? Anyone? पहले आप लोगे पहले 5% में कौन से हैं, फिर next. This is called as fractile. ठीक है, और 10 वाले को क्या बोलते हैं? Decile. Exactly, it's called as decile. ठीक है. Do remember these terms, guys. When we'll do Indian economy in the last 2 semesters, there are a lot of readings which use this kind of data. कि हमें ये देखना, for example inequality, for example poverty के अंदर when we'll understand this, तो हम ये deciles and fractiles दोनों को देखते हैं. Then quartiles is very simple. You just divide it into quarters, Q1, Q2, Q3 and Q4. ठीक है. And there is this measure which is called as range. Range होता है highest value minus lowest value.
बट जो आपकी टॉप मोस्ट वैल्यू है माइनस लोएस्ट वैल्यू विल गिव यू द रेंज, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एट टाइम्स अगेन इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है डेटा के अंदर, तो आप उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज टेक इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज Q3 minus Q1, विल जस्ट सी, ठीक है. सो when you want to see the measures of dispersion, now what does this measure of dispersion tell you, that how far or how close is the data to the central value. So आपका जो ग्रेविटी है पूरे डेटा की, सपोज यहाँ पर पूरे डेटा की ग्रेविटी आ रही है, या ये आपका सबसे बड़ा पुल फैक्टर है, हाउ क्लोज आर ऑल द पॉइंट्स or all the data points to the center of gravity. So that center of gravity could be mean, that center of gravity could be median, that center of gravity could be mode. But usually in economic in statistical parlance is usually taken as mean. ठीक है, हम usually mean के around ही सब कुछ निकालते हैं. तो what we are trying to say is the variability of data, कि data कितना ज्यादा spread है या कितना कम spread out है. So that is basically the concept of dispersion in data. And when we are talking about dispersion, there are three major things. One is your range. Okay, range is also basically your highest minus your largest minus your smallest value. But there is also something called as interquartile range, IQR. IQR is whatever is the value at Q3, okay, minus Q1 is your interquartile range. For example, आपने डेटा को अपने डिवाइड कर दिया 4 क्वार्टाइल्स में, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है और ये आपका Q4 है, ठीक है. तो आपने दिस माइनस दिस, ये वाला जो डेटा है ये आपने पिक, ये इसका रेंज कितना है ये आप देख रहे हो. और ऐसे प्लॉट को हम क्या बोलते हैं गाइस, हमने देखा था अ प्लॉट लाइक दिस, बॉक्स प्लॉट. एग्जैक्टली, बॉक्स प्लॉट हमने देखा था, ठीक है. तो बॉक्स प्लॉट का ये जो रीजन होता है दैट इज बेसिकली योर इंटरक्वार्टाइल रेंज, Q3 और Q1 होता है. एंड ये विस्कर्स कहां पर होते हैं, रिमेंबर, एनीवन रिमेंबर्स, किसी को याद है कि ये रेंज क्या होती थी? कम ऑन गाइस, हमने आर के टाइम पे भी पढ़ा था ये. नहीं आउटलायर्स तो ठीक है पुनीता, बट ये किस पॉइंट के बाद आउटलायर्स होते हैं, ये कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? किसी को याद नहीं है गाइस क्लास में? अरे 1.5 इंटू IQR याद नहीं है? प्लस माइनस IQR प्लस माइनस 1.5 इंटू IQR. यस एग्जैक्टली, दैट इज बेसिकली उस पॉइंट पे आपके ये लेवल्स आ जाएंगे, उसके बाद वाले सबको आउटलायर्स बोलते हैं, ठीक है. डू रिमेंबर इट गाइस. I mean, whenever technically you need to define it, you need to define it like that. Then we'll also let me also discuss here. Let me discuss here itself the concept of mean. और ये तो हो गया, but कई बार लोग geometric mean, is the geometric mean harmonic mean in statistics? Ashwar, GM और HM है क्या stats में? Okay, great. So let me just also touch base upon GM and HM, because इसका भी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली when to use GM and HM. किसी को पता है क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? एनीवन नोस? स्कूल में तो पढ़ा होगा शायद से ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है. हाँ 11th 12th में पढ़ा था, तो बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है. फॉर्मूला नहीं चाहिए गाइस, फॉर्मूला अगर बोल दिया फॉर्मूला तो रट के फॉर्मूला हो गया, फिर फायदा क्या पढ़ने का. अरे ये फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई मैंने भी बहुत करी है, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता. चलो आज मैं तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन 2 मिनट लेंगे. ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, it will help you a lot, especially अगर when you are going for these competitive exams, CAT वगैरह के लिए. I mean कई बार ये formulas बहुत help करते हैं, ठीक है. कि ये और दूसरा probability जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, that will help you a lot in probability, permutation, combination. So that is going to be very essential. And your distribution, especially a lot of your we will deal with your binomial distribution. I'll touch base upon it. Because I need to show you how to find binomial distributions, but I will just touch base upon binomial and Poisson and hypergeometric distributions. But I will give you the essence of it, कि क्यों होता है और कैसे होता है, वो क्यों यूज होती है. These are all processes of statistics, ठीक है. And these are very useful. If you know them, you can solve a lot of questions of CAT. If you just know when to use which kind of a distribution, ठीक है. So geometric mean जो होता है, it's a special kind of an average. This is a special average. Why is it special? Because यहाँ पर जो भी numbers को हम ले रहे हैं average करने के लिए, हम उनको multiply करते हैं. For example, if I take two numbers x and y
अगर मैं उसका मीन निकालना चाहता हूं तो मैं x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करता हूं, राइट? बट because geometric mean is a special average, what I do is we multiply it and then take a root of it to the power कि इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन, सपोज यहाँ पर 2 थी तो इसलिए मैं स्क्वायर रूट लूंगा, अगर मैं यहाँ पर z भी डाल देता तो मैं क्यूब रूट ले लेता, अगर मैं कुछ और भी डाल देता तो मैं फोर्थ रूट लेता उसका, ठीक है? नाउ दिस, ये तो हुआ कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज। बट ये स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज जो होती है वो क्यों चाहिए होती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ज्योमेट्रिक मीन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंपेयर थिंग्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। याद रखना इसका एसेंस कब आता है, वी यूज इट व्हेन वी वांट टू कंपेयर थिंग्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट। किसी ने HDI का नाम सुना? HDI इकोनॉमिक्स में अभी तक सुना है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें इंडेक्स में क्या होता है भाई, क्या होता है? बेसिकली यू रैंक अराउंड कंट्रीज, ठीक है? एंड जब हम ये रैंकिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो इस रैंकिंग के अंदर भी वी यूज व्हाट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज एक कोई मूवी है, मान लो एक मूवी मैं लेता हूँ जिसका से आई से कि अच्छा इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो 200 CR या 200 रुपीज था मान लो, ठीक है? और इसकी रेटिंग मान लो 8 है। और एक और मूवी है, डिफरेंट मूवी है, इसकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट थी वो 250 करोड़ है, बट इसकी रेटिंग 6 है। नाउ इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट, इफ आई आस्क यू कि कौन सी बेटर मूवी है, which movie is in general better in terms of overall analysis, for comparing this, what you can either do is कि आप इसको लो, आप कहो कि ये प्लस ये करूंगा मैं एंड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, एंड इसको बोलोगे कि अच्छा ये 256 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है? कि ये लोग, ये इसका बजट था और इतनी रेटिंग आ रही है, और ये इतना बजट था और इसकी ये रेटिंग आ रही है, बट दैट विल बी एन इनकरेक्ट वे टू डील विद दिस कंपैरिजन के लिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मल्टीप्लाई देम एंड टेक अ स्क्वायर रूट, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करो एंड देन टेक अ स्क्वायर रूट, एंड देन व्हाट यू विल फाइंड आउट, इनका जो आप वो निकालोगे, ट्राई करके देखो कितना आ रहा है, चेक कितना आ रहा है, चेक गाइस। 1600 का स्क्वायर रूट 40 एंड 38 पॉइंट समथिंग। तो कैन यू सी कि इनका जो डिफरेंस जो बहुत ज्यादा दिख रहा था, इनका डिफरेंस देखो कितना ज्यादा वैसे दिख रहा था, बट एक्चुअली में इनको आप कंपेयर अगर आप करना चाहोगे तो आप आराम से इनको कंपेयर कर सकते हो। इनको आपने एक सिमिलर स्केल पे ले आए हो, ठीक है? एक ऐसे स्केल पे ले आए हो जहां पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर थिंग्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, what you can do is you can easily take out geometric mean and then compare them, because it kinds of puts them into context. Something similar is also happening with standard deviation, but that is a different thing altogether, okay? So that is where you use geometric mean. When we talk about harmonic mean suna kisi ne? Have you guys heard of harmonic mean? So geometric mean is for comparing things which are very different. ओके, सो हार्मोनिक मीन क्या होता है? किसी को फॉर्मूला याद है? आज मैं आपको हार्मोनिक मीन का एक ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला कभी, मतलब अगर ठीक से सुनोगे तो कभी भूलोगे। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है? यू इजीली फॉरगेट दिस, ठीक है? बट द वे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब हम मीन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ए और बी लेता हूँ, ए और बी का मीन हो जाता है ए प्लस, बट द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन इज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है? तो पहले तो रेसिप्रोकल लूंगा मैं, ए और बी है, तो ए और बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ए और बी का 1 बाय ए एंड 1 बाय बी। इनका एवरेज कैसे करूंगा मैं? हाउ विल आई टेक द एवरेज ऑफ दिस? प्लस एंड डिवाइड बाय 2। यहां तक समझ में आ गया? एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल क्लियर है? हाँ, फॉर्मूला ठीक है, बट मैं आपको फॉर्मूला का वो बता रहा हूँ, सेंस बता रहा हूँ। यूजुअली लोग फॉर्मूला रटते हैं, बट अभी मैं उसका एप्लीकेशन पूछूंगा तो अभी गायब हो जाओगे, ठीक है? अभी पूछता हूँ एप्लीकेशन। देन रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज बेसिकली 2/1। इन जनरल हार्मोनिक मीन इज n/1 प्लस a प्लस 1 प्लस b प्लस, कैसे इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं। बट ये तो हुआ सिंपल
ये तो हुआ सिंपल आपका इसको लिखना। हाउ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इट। ठीक है, इसका एप्लीकेशन यूजुअली कैट के कई क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई से दैट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सुना गया आपने, ये एक प्रॉब्लम्स होती हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है, सपोज आई से दैट I go from, I'll give you the example how it is used. I start from my home and या ट्रेन का लेते हैं, ट्रेन का अच्छा एग्जांपल आता है। सपोज दिस इज अ ट्रेन विच इज अप्रोचिंग अ स्टेशन। नाउ way before the station, the train is traveling, ये 20 किलोमीटर दूर है, स्टेशन जो है वो ट्रेन से 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। एंड आई से दैट till 10 kilometers the train can move fast, और उसके बाद फिर ट्रेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप सिटी में एंटर कर गए, आपको स्लो चलना है। सो टिल दैट 10 किलोमीटर का जो रेंज है ये 60 kmph पे चलती है। एंड उसके बाद जो लास्ट जो 10 किलोमीटर है उस पे इसको अलाउड है से नहीं 20 किलोमीटर पर। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार और ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? समझ में आया क्वेश्चन? एंड आई विल टेल यू कि यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे होती है इसकी हार्मोनिक में। द क्वेश्चन इज दैट अ ट्रेन इनिशियली मूव्स 10 किलोमीटर at the rate of 60 kmph and then the final 10 kilometers it moves at the rate of 20 kmph. What is the speed of the train? Average speed of the train. अरे फॉर्मूलाज मत लिखो, फॉर्मूलाज नहीं, फॉर्मूलाज याद रखोगे तो एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला याद आएगा, ये गलती मत करना, समझो इसको। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक में। ठीक है, या तो आप इसको ये देख सकते हो कि अच्छा इस ट्रेन ने 60 किलोमीटर 60 kmph पे 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, दैट मीन्स ये 10 मिनट ले रही होगी। ठीक है, एंड ये इसने 10 किलोमीटर ये ट्रैवल किया एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो दैट मीन्स ये 40 मिनट्स ले रही होगी। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सॉरी ये 30 मिनट्स ले रही होगी। तो इस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट इट कि अच्छा इसने टोटल 40 मिनट्स लिए हैं टू travel 20 kilometers, therefore the speed is 30 kmph. Or in such a case you could have easily done 2 upon 1 plus 60 plus 1 plus this would have also given you, that is where harmonic mean comes into play. तो harmonic mean का अपने काफी सारे uses हैं, again I will not go into cat prep और ये कैसे हो रहा है उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, but this is how it is done. In fact, if you're interested in all of this, you can buy a book by Arun Sharma sir. Quant for cat hota hai. It's India's best-selling book for cat examination. And I was fortunate enough that he's a very good mentor of mine. And I mean, I keep speaking to him quite often. And he mentored me. And मेरा जो fear psychosis था, permutation combination वो इन्होंने हटाया था. Now let's move on to quartiles, variance. Now variance as a value guys. वेरिएंस का काम क्या होता है? वेरिएंस का काम होता है ये देखना आपका जो मीन से कितना दूर आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट नाउ व्हाट इट डज इट स्क्वायर्स दैट वैल्यू एंड देन एवरेजेस इट अप. सो व्हाट इट डज इज दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज आपके ये डेटा है, सपोज आपका ये मीन है, आप हर डेटा पॉइंट को देख रहे हो कि वो मीन से कितना दूर है, एंड बट इसमें एंड अगर इफ यू डोंट स्क्वायर इट अप, एब्सोल्यूट जो होता है मीन स्क्वायर एरर जो होता है, एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर जो होता है, इसमें और उसमें क्या फर्क है गाइस? हैव यू डन दैट इन स्टैट्स? ऐश्वर्या स्टैट्स में होता है क्या मीन एवरेज डेविएशन या एवरेज डेविएशन? नहीं अभी स्टैट्स में है क्या? लेट्स फॉरगेट दैट. तो हम करते क्यों हैं? ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस बिहाइंड इट एंड देन वी विल सी कि अच्छा हम कहाँ यूज करते हैं. व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो कितनी दूर हैं आपके मीन से. ठीक है, आपकी सेंट्रल वैल्यू से. इस केस में हम मीन ले रहे हैं, वेरिएंस केस में मीन लेते हैं. तो ये जो डेटा पॉइंट है, सपोज क्लास का एवरेज इज 70 मार्क्स, किसी बच्चे का है 50 मार्क्स, तो हम देख रहे हैं कितना डिफरेंट दूर है. बट व्हाई आर वी स्क्वायरिंग दिस अप? थैंक यू ऐश्वर्या. व्हाई आर वी स्क्वायरिंग दिस अप?
That's my question. And this is a very essential concept, guys, for the basics of econometrics, because in econometrics you will keep using something called as RMSE, root mean square error, which is one of the most important parameters. And उसका एसेंस इसी से आता है. Why do you square it up, guys? सोनल कहाँ है? सोनल कहाँ? और कौन है यहाँ पर? अनन्या, सिदुषी, श्रद्धा, बताओ भाई. Why do you square them up? What is the logic behind it? No, that's not the case. Outliers इसमें भी आ जाएगा. Okay, someone has answered. To account for deviations with negative values, yes, absolutely. As Vatsala has pointed out, check the messages कि हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 50 और एक वैल्यू 90 आ रही है, तो ये अगर मैं इससे डिफरेंस लेना शुरू करूंगा तो 90 minus 70 is plus 20 and 70 minus 50 is and 50 minus 70 is minus 20, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे. So that is one reason. And apart from that, another reason which you should appreciate is that जितनी दूर वैल्यू होगी उसको आप स्क्वायर करके उतना बड़ा बना रहे हो. समझ में आई ये चीज? ये चीज समझ में आई? क्या हुआ? जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा ये डिफरेंस होगा और आप उसको स्क्वायर करके और ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हो, और जितना ज्यादा पास होगा आप उसको उतना वेटेज नहीं दे रहे हो. So ultimately, if an observation is very far away from the mean, आप उसको कह रहे हो कि यार ये बहुत दूर है, और उसको दिखाने के लिए आप उसको स्क्वायर करके और ज्यादा एक्सेंचुएट करने की कोशिश कर रहे हो. समझ में आई बात? इट इज ऑल्सो गेटिंग इन टू द इंटेंसिटी इन सम वे, कि डेटा पॉइंट्स कितने ज्यादा इंटेंसली दूर है. यस, नो, ग्रेट. सो usually what students answer is कि positive or negative, but you need to appreciate it also captures a measure of intensity. Something akin to this you will understand in development economics when you will see different measures of poverty. ठीक है, जब आप different measures of poverty and inequality देखोगे तब आपको ये वेरिएंस, इंटरपर्सनल वेरिएंस, कंजम्पशन वेरिएंस या इनकम वेरिएंस के अंदर ये कंसेप्ट. ठीक है. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट यू टेक द रूट ऑफ दिस, एंड जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हो then again you can compare a lot of distributions. So standard deviation का ये यूज भी आता है कि you can compare a lot of distributions. ठीक है. So square root of variance is standard variance. And economics, not just economics, in any quantitative field, whether you take healthcare, whether you take किसी भी, जो भी आपको quantitative field समझ में आती है, जहां पर कहीं भी क्वांट आ सकता है, वहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन जरूर आएगा. इट्स सच एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है. कोएफिशिएंट, इज देयर अ प्रॉब्लम विद माय इंटरनेट? हेलो. ओके. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? आप कंपेयर करते हो मीन से. सो व्हाट यू डू इज क्या होता है गाइस? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, कैन एनीवन टेल? कम ऑन गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Exactly, standard deviation by mean is going to give you coefficient of variation. कि डेटा कितना ज्यादा आपका ओवरऑल जो डेटा है वो एज कंपेयर टू मीन कितना ज्यादा वेरी कर रहा है. एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑफन यूज्ड टू कंपेयर एब्सोल्युटली टू डिफरेंट थिंग्स जो अलग अलग स्केल्स हैं. ठीक है. स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप यूज कर सकते हो, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यूज कर सकते हो, जहां पर आप दो अलग अलग बिल्कुल क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि अच्छा किस में वेरिएशन कितना ज्यादा है. ठीक है. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑफन यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एज वेल. देन इंटरक्वार्टाइल रेंज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इट इज. देन लास्ट टू कांसेप्ट बिफोर वी गो टू हैंड्स ऑन is skewness and kurtosis. Skewness and kurtosis must have been covered in your the stats class as well. Skewness क्या होती है guys? What is skewness? Come on guys. What is skewness? How do you take up what is right skewed, what is left skewed? What is this distribution, guys? It is right skewed. All of you agree, guys? What is it also called as? Positively skewed. Right skewed or also called as. ठीक है. अब ये right skewed क्यों होता है guys? Any reason? Any idea? Where? Which region? Exactly. आपके डेटा पॉइंट्स यहां पर ज्यादा हैं. ठीक है. डेटा पॉइंट्स यहां पर ज्यादा हैं, बट जो वेट कैरी कर रहे हैं डेटा पॉइंट्स वो यहां पर ज्यादा है. इसीलिए आपका मीन यहां पर आता है, मोड यहां पर आता है एंड मीडियन यहां पर आता है. समझ में आया? ये डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है.
ये डेटा को मीडियन जो है डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बट आपके डेटा के अंदर हायर वैल्यूज हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसीलिए आपका मीन जो है वो अपनी तरफ लेके जा रहे हैं हायर वैल्यूज वाली चीजें। बट जो आपका ये आउटलायर टाइप ऑफ डेटा है जो मीन को राइट हैंड साइड में स्क्यू कर रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ जो डेटा है उनमें कम वैल्यूज है, तो इसीलिए मोड आपकी लेफ्ट स्क्यूड के अंदर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट स्क्यूड, मेजरली सपोज मैं एक एग्जाम लेता हूं और उस एग्जाम में सबको बहुत कम मार्क्स देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वो लेफ्ट स्क्यूड आपको क्या कहते हैं डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, जहां पर मीन जो है वो यहाँ है, मीन जो है वो यहाँ है, देन मीडियन यहाँ है एंड मोड यहाँ। सो दिस इज हाउ यू सी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड, जहां पर आपके पास लोअर एंड पे बहुत सारे आउटलायर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों के पास 0 आ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के अगर 0 आने शुरू हो गए मार्क्स, तो वो अपनी तरफ पुश करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इसलिए मीन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देन ये चीजें क्लियर हुई गाइस कि व्हेनेवर यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन ईदर एंड, at lower end it will basically drag your entire mean to the left. If it's on the higher end, it will drag the entire thing to the right. समझ में आई ये चीज? Yes, no, left skewed, right skewed, ठीक है। So skewness is this. What is kurtosis? 3 तरीके के होते हैं। What are these? क्या होते हैं गाइस? ये क्या होता है? Kurtosis is you have something called कितना पीक कर रहा है, ऐसा होता है, तो कर्टिक होता है। डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेटा कैसा है। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, ठीक है, और उसकी कोई बहुत बड़ी पीक नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लैटिकर्टिक। अगर ये नॉर्मली पीक कर रहा है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? मेसोकर्टिक, ठीक है। एंड अगर उसका कोई एक पर्टिकुलर पीक है बहुत ज्यादा, इसमें क्या है, आपका डेटा जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं है, सिर्फ कुछ ही वैल्यूज के बीच में सारा का सारा आपका डेटा आ गया, that is called as leptokurtic, ठीक है। these are kurtosis which basically checks the peak of the distribution, ठीक है, and skewness checks your spread, basically the symmetry of the distribution, कि वो right में या left में कहीं पे spread तो नहीं है, तो it will give you an information about कि outliers किसकी तरह है, इसकी values majorly ज्यादा है कि कुछ values कम है, एंड ये आपको बताएगा कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज है कि डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वाइडली स्प्रेड है। सो दीज आर 2 थिंग्स, एंड द लास्ट 2 concepts that we need to cover before going into hands on is covariance and correlation. Covariance क्या होता है? Covariance होता है जब आप किसी भी 2 वेरिएबल्स को whether they are related or not, you are able to tell कि कोई 2 वेरिएबल जो है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड यू ऑल्सो गिव द डायरेक्शन कि अच्छा उनका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि कोवेरियंस बिटवीन से स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, जितना ज्यादा स्पीड आप करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे। तो ये आपको बता पा रहा है कि ये 2 वेरिएबल्स जो है पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोवेरियंस। हाउएवर कोरिलेशन गोज a step further. Correlation also tells you, the coefficient of correlation also tells you that how strong that relationship is. So covariance will be able to tell you the positive or the negative side of the relationship, whereas correlation can also tell you an added factor that how strong this correlation is. Correlation का range क्या होता है guys? There is a range of correlation -1 to 1. So it also provides you a yardstick to tell the strength of this relationship. यहाँ तक क्लियर है गाइस? ये बेसिक्स मुझे आपको बताने थे जो आपको पता होने चाहिए थे। एक बार let's move to Excel. Guys, please open this file which I had sent. Now, this is a file on descriptive statistics. जो भी हमने आज अभी किया है वो सारी चीजें हैं, ठीक है, एंड उसके कोड्स भी हैं सारे के सारे, कुछ नहीं है, and I want you to replicate them on your own guys, ठीक है। I'll send you a file on R, how to do it, but I want you to try it on your own and then we can do it in the class as well. बहुत सिंपल है, सिंपल मीन के लिए, मीन तो हमने देखा था, मीन मीडियन मोड तो देखा था ना गाइस, यस और नो? मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन देखा ही था हमने आर में, यस नो गाइस? लेट्स सी देम इन एक्सेल एज वेल, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा
क्या है कि ये यहाँ पर हम बात बता रहे हैं कि these are these 10 individuals, ठीक है. I will assume them to be the female kind, ठीक है. एंड दीज आर गेट रेडी टाइम, ये कितने टाइम में रेडी हो जाते हैं. अगर कोई कहीं बाहर जाना है तो कितने टाइम में मोहतरमा रेडी हो जाएंगे, ठीक है. तो दीज आर 10 women, उनका गेट रेडी टाइम मेंशन्ड है. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ इट, तो हमें पता है सिंपल, इसको करके हम मीन ले सकते हैं, ठीक है. आपके पास नीचे यहाँ पर वैल्यू भी आ जाती है, एवरेज भी आ जाती है, ठीक है. इफ यू वांट टू चेक इट, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, मीन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, कैसे निकालोगे मीन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करोगे. सपोज मैं यहाँ पर मीन निकालना चाहता हूँ, तो क्या लिखोगे, क्या लिखूं मैं. नहीं, बट वो तो हुआ, वो तो फिर तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ आरती, उसमें थोड़ा मजा है. तो आप सिंपल एवरेज लिखो, ठीक है. एवरेज बोलेगा तो वो यहाँ पर एवरेज का आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है. फिर एवरेज वो नंबर्स बोलेगा तो नंबर्स में आप डेटा पे जाओ वापस, और ये पूरा सेलेक्ट कर दो एंड इसको एंटर कर दो, आपके पास एवरेज आ गई. समझ में आया कैसा आया, ये लिखा है. क्लियर हुआ गाइस ये. सिमिलरली, यस यस, किसी को कोई इशू था दीपशिका. सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट मीडियन, ट्राई इट आउट गाइस. कॉमन सेंस, मीडियन निकालोगे, कैसे निकालोगे. डोंट कॉपी दी फॉर्मुलास गाइस. अगर आप कॉपी करोगे, ट्रस्ट में आप नहीं सीखोगे, गलती करो सीख जाओगे. द ओनली वे टू लर्न एनीथिंग इन एक्सेल and R or any of these languages is to do the mistake. और एक्सेल का तो आप डेप्थ सोच भी नहीं सकते हो, एक्सेल कितनी ज्यादा डेप्थ पे जाता है. की टू डेटा साइंस एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल, एग्जैक्टली. बस मीडियन की स्पेलिंग गलत है. तो मीडियन कर लो एंड सिमिलरली मोड कर लो. ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया और ये आपका मोड का फॉर्मूला हो गया. गाइस डू नॉट कॉपी देम, डू नॉट जस्ट सी, एक बार हाथ से निकाल के देख लो. यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, स्पेशली जिन्होंने एक्सेल नहीं यूज किया है. जिनको आप पता है तो उनके लिए तो कुछ नहीं. कैन आई मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो टू रेंज. रेंज के अंदर हम एडिशनल चीज क्या करेंगे, हमें मिनिमम वैल्यू पता है और मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है. सो रेंज इज इवन सिंपलर. नाउ देन द नेक्स्ट इज वेरिएशन. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेरिएंस. अब वेरिएंस कैसे निकलता है गाइस, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है आप इसका मीन निकालोगे. इसका मीन बेसिकली आप क्या करोगे, अगर मुझे इसका वो निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, वेरिएंस के लिए मैं क्या करूंगा, इसका मीन लिखूंगा. इसका मीन कितना था, लेट मी कैलकुलेट इट. इट वाज 39.6, ठीक है. आई विल राइट 6 एंड फिर यहाँ पर क्या करूंगा, इस वाले कॉलम में क्या करूं, अगर मुझे मैनुअली निकालना है तो इस कॉलम में क्या करूं बताओ. कम ऑन गाइस, वेरी सिंपल थिंग. व्हाट इज वेरिएंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन. So I will write is equal to this minus this, enter. Similarly इसको ड्रैग कर लूंगा, मेरे पास ये आ गया. क्लियर. अब क्या करूंगा गाइस, what will I do next, what should I do next गाइस. ये तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर क्या करूं इसका, स्क्वायर इट. So I will say is equal to this, ठीक है, and I will drag this. समझ में आया गाइस क्या करा मैंने, उसी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया. यस और नो, यस. समझ नहीं आया मुझे. व्हाट डिड यू डू, हाँ तुमने क्या किया होगा, तुमने दो को एक बार फिर से सब कुछ डिलीट करके पहले एवरेज सिंपल एक वैल्यू लिख दो, ठीक है. अच्छा, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव डन. तुमने क्या किया होगा, यहाँ पर तुमने लिखा इज इक्वल टू एवरेज, तुमने किया ये राइट एंड एंटर कर दिया. एंड उसके बाद तुमने ड्रैग किया होगा, डिफरेंट यही आ रही है. फॉर्मूला तो चेक करो एक बार क्या हुआ, तुम्हारा फॉर्मूला बदल चुका है. तो उसके आगे तुम्हें फिर तो डॉलर लगाना था, फॉर्मूला बदल गया ना. देखो यहाँ तुमने क्या कर रही हो, यहाँ एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल कह रहा है कि अच्छा पहले वाले सेल में A2 से लेके A11 तक करनी है, क्या एवरेज निकालना है. नीचे वाले सेल में A3 से लेके A12 है, यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर ये ऊपर वाली वैल्यू चले गई, 29 से शुरू कर रहा है. समझ में आया. डॉलर साइन छोड़ो, सिंपल अभी तो ये डाल दो, डॉलर साइन छोड़ो. डॉलर साइन से आप क्या करते हो, डॉलर साइन जब जैसे आप लगा देते हो ए के आगे पीछे, जैसे डॉलर साइन लगा दोगे तो वो मूव नहीं करेंगे, वो वही वैल्यूज रहेंगी. इसके आगे डाल दो, इसके आगे डाल दो, यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर डाल दो, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम ही एरिया का लेगा फिर. क्लियर है. अब बताओ गाइस इसका क्या करूँ मैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट विल आई कॉल दिस. यस भावनी, कॉलम बी में मैंने सिर्फ मीन डाला है, दिस इज जस्ट मीन. अच्छा ये मीन है. डी में कुछ नहीं किया, डी में मैंने इसको स्क्वायर कर दिया. ये डिफरेंस है ना, इसका और इसका डिफरेंस मैंने करा, इनका डिफरेंस यही करते हो ना. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, कम ऑन गाइस, वेरिएंस का हमारा अगले महीने एग्जाम है, वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं. सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन
सम करोगे उसके बाद उसका वो नहीं करोगे, एवरेज आउट नहीं करोगे। n-1 कब होता है और n कब होता है, ये अब तुमने नई चीज, ये तो नया कंसेप्ट आ गया अब। तो अब हम वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं। वेरिएंस का हमने बोला कि वेरिएंस होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम द मीन। ठीक, पहली बात तो ये। नाउ दिस इज अ हैंडफुल टू लर्न। सो इंस्टेड आई टोल्ड यू टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा डिफरेंस है आपका। ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग श्रद्धा, कैन समवन पॉइंट आउट श्रद्धा ने क्या गलती करी है वहां पर? श्रद्धा इज सेइंग n-1, आई एम सेइंग n, व्हाट इज द डिफरेंस? यूजुअली जब ये कॉलेज क्लास हो रहा होता तो ये एक चॉकलेट क्वेश्चन बनता, अगर ये लाइव क्लास होती। एग्जैक्टली, n-1 इज फॉर सैंपल। अगर आप s लिख रहे हो गाइस, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स। स्टैटिस्टिक्स में नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल यूजुअली डू नॉट टेल दिस। अगर आप म्यू लिख रहे हो वो मीन है, अगर आप एक्स बार लिख रहे हो तो वो सैंपल मीन है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। सो दिस इज इक्वल टू 1/n अपॉन समेशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये तो अभी हमने क्या किया गाइस, अब मुझे बताओ, अब फॉर्मूला तोड़ के समझो। ठीक है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम हर वैल्यू को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना ज्यादा दूर है मीन से, एंड उसको स्क्वायर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट विल आई कॉल दिस पर्टिकुलर कॉलम? व्हाट विल आई कॉल दिस? मीन स्क्वायर्ड एरर? नो, दिस इज नॉट मीन स्क्वायर्ड एरर। इस कॉलम को क्या बोलोगे गाइस? ये तो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन है ना, एब्सोल्यूट डेविएशन है ये, एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन। समझ में आया? क्या कर रहे हो आप? xi माइनस म्यू ही तो कर रहे हो सिर्फ यहाँ पर पूरे कॉलम में, एब्सोल्यूट डेविएशन कर रहे हो। और ये क्या हुआ फिर? व्हाट विल यू कॉल दिस? स्क्वायर डेविएशन। यू विल कॉल दिस एज स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, अब इसका मीन लोगे तो उसको क्या बोलोगे? इसका मीन कैसे लेंगे गाइस? ऑल ऑफ दिस, इसका मीन कितना आ रहा है? 40 दिख रहा है यहाँ पर 41.24। दैट इज, ओ किसी को गलती समझ में आई? क्या हुआ है? किसी को गलती समझ में आई? एक चीज एक्सप्लेन करने के चक्कर में दूसरी चीज गलत हुई है। कैन एनीवन गेस क्या गलती हुई है? आई विल टेल यू। हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पर जस्ट ट्राई टू सी वेरिएंस क्या है। वेरिएंस वार, वेरिएंस इज बेसिकली, उसका कमांड क्या होता है? VAR। नाउ VAR एंड यू नीड टू पुट कि सैंपल का कर रहे हो कि आप की पॉपुलेशन कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज द मोमेंट आप पॉपुलेशन लोगे, ठीक है, तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा, और आप सैंपल लोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन लोगे तो यू विल गिव दिस कमांड, एंड उसमें उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा बॉस गिव मी द डेटा, व्हाट डेटा आर यू प्रोवाइडिंग मी? यू से दिस इज द एंटायर डेटा एंड यू से एंटर। द मोमेंट यू पुट दिस एज सैंपल, VAR डॉट s, तो आपने सैंपल ले लिया, ठीक है, देन इट विल अगेन आस्क यू दिस डेटा एंड यू प्रोवाइड दिस, तो आपके पास ये वैल्यू। समझ में आया गाइस डिफरेंस? सैंपल एंड पॉपुलेशन। सैंपल के केस में दिस फॉर्मूला चेंजेस टू 1n-1। अब इस फॉर्मूले में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है गाइस? इस फॉर्मूले में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आएगा? व्हाट शुड आई राइट? x बार। समझ में आया गाइस दोनों में? तो बी वेरी केयरफुल कि आपके केस में जो मेरे अभी गलती करी वो नहीं करो, कि सैंपल दे रखा है या आपके केस में पॉपुलेशन दे रखा है। ठीक है ना? the other thing is by the way guys, this is called as Bessel correction also, so called as, and this is done for making it unbiasedness, corrects the bias in estimation of the population. Again I will move in this when we go into econometrics, तो मैं इसका बेसिक्स पूरा वापस कराऊंगा। मे बी इन दी लास्ट, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना इन दी एंड, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं I can maybe cover them up at the last end where you also have this. समझ में आया गाइस? वेरिएंस समझ में आया दोनों? var.p and var.s, एंड कैसे निकालते हैं? यहाँ इन्होंने var.s ले रखा था and I was doing var.p. क्लियर नहीं क्लियर? नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जस्ट इधर डू इसका स्क्वायर रूट, या फिर इसका अपना कमांड है stdv। अगेन गाइज डू रिमेम्बर कि आप सैंपल का कर रहे हो तो डॉट एस करोगे, और पॉपुलेशन का करोगे तो डॉट पी करोगे। यू कैन डू stdv, आपके पास अपने आप आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन और या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल।
अगर आप पॉपुलेशन का करना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस एंड देन इट विल आस्क यू फॉर अगेन द नंबर्स, तो यू कैन गिव पूरा वो भी दे सकते हो एंड एंटर कर दो, यू विल गेट दिस। ये डिफरेंट आ गई क्योंकि हमने पॉपुलेशन का लिया है, इसने यहाँ पर सैंपल का डाल रखा है। यूजुअली हम सैंपल का ही यूज करते हैं, बट अभी जस्ट शोइंग यू पॉपुलेशन। क्लियर? देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है। योर स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इन 200 करते हैं, परसेंटेज टर्म्स में आता है। फॉर एग्जांपल दिस आ गया एंड यू कैन पुट दिस एज, यहाँ से इसको या तो ऐसे इनटू 100 का, बट आपको परसेंटेज में चाहिए ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल नंबर, तो राइट क्लिक करके यू कैन फॉर्मेट सेल एंड फॉर्मेट सेल में दिस इज अ परसेंटेज, यू वांटेड 2 डेसिमल पॉइंट। क्लियर है गाइस? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर सकते हो बस स्प्रेड देखने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में रेनफॉल कितना होता है और पाकिस्तान में रेनफॉल कितना होता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस कितना है, योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देख लो। दो अलग अलग चीजों को कभी भी आपको कंपेयर करना है, उसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिग्मा का यूज जो है मैं आपको बताऊंगा। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म 6 सिग्मा? किसी ने सुना 6 सिग्मा? किसी ने नहीं सुना 6 सिग्मा? ओके, ये देखा है गाइस, ये देखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ा है चैट से? अरे यार तुम लोग तो, तुम्हें देख के घबराहट मुझे हो रही है कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा था कि मैं एंड में बहुत तेजी से कर लूंगा ये सब काम, सब कुछ हो चुका होगा और तुम्हें सब कुछ आता होगा। नाउ आई हैव टू अज्यूम कि तुम लोगों को नहीं आता। नाउ अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका या अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करो, स्टैंडर्ड नॉर्मल को तो छोड़ दो, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा विल गिव यू 67% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर सैंपल। सारी ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन 67% इस रेंज में लाई करती है। सिमिलरली 2 सिग्मा के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 95% लाई करती है एंड इन केस ऑफ 3 सिग्मा ये बेसिकली और बाहर चला जाता है एंड 99% क्या कहते हैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसमें लाई करती है। तो जब हम 6 सिग्मा के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली बोल रहे हैं x प्लस माइनस, तो इसीलिए 6 सिग्मा जो है इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी कि कितना बड़ा क्वालिटी चेक किया गया है, ठीक है। I'll take certain examples while teaching this particular section क्योंकि I think I would have to take up distributions as well थोड़ा सा और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे थोड़ा सा शायद से कराना पड़ेगा, फिर उसको आपको आइडिया लगेगा कि हम क्वालिटी चेक के लिए कई बार कहते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, कि नॉर्मल लोग ये हैं और हमारी क्वालिटी 6 सिग्मा प्लस है, इतने ज्यादा इतना इट्स समथिंग लाइक आप कह रहे हो कि बंदे का 99.999 परसेंटाइल आया, ठीक है, वो 6 सिग्मा लेवल तक पहुंच गया। सो इट इज ऑल्सो एन अश्योरिटी ऑफ क्वालिटी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ये बहुत यूज होता है। एयरलाइन इंडस्ट्री में गाइस आपने देखा है कि जो प्लेन होता है उसके जो विंडोज होती हैं उसमें नट्स लगे हुए होते हैं, देखा है, नट्स से बोल्टेड होता है। और हैव यू सीन दिस थिंग एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखा है नेट जियो पे? किसी ने नहीं देखा? एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन आता था नेट जियो पे या उस पे भी होगा, करते हो तुम लोग, देखो इसको भी। अच्छा एयर क्रैश एट टाइम्स यू विल फाइंड आउट दैट क्योंकि एक स्मॉल 1 mm का रिविट प्लेन के अंदर घिस गया, उसकी वजह से पूरा का पूरा प्लेन गिर गया, जस्ट बिकॉज एक स्मॉल रिविट जो है वो ठीक से नहीं गया हुआ था। तो इसीलिए ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर जहां मिलीमीटर टू मिलीमीटर चीजें एंड माइक्रो मिलीमीटर भी मैटर करता है, वहां पर हम आपको 6 सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी चाहिए होती है, ठीक है, कि इतनी कम प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फेल करने की, ठीक है, समझ में आया? देन द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू कवर in terms of this thing is skewness and kurtosis, ठीक है। skewness basically tells you कि कितना ज्यादा skewed है, कि right skewed है, अगर 0 पे है तो that means वो it's not skewed at all, ठीक है, it's symmetric। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो क्या कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है, और नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो राइट स्क्यूड है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो लेफ्ट स्क्यूड है, ठीक है। और स्क्यूनेस के लिए बस स्क्यू आपको कमांड देना है, स्क्यू, एंड इट यू विल गेट दी डेटा कि उसका स्क्यूनेस कितना, और कर्टोसिस के लिए KURT देना, ठीक है। जस्ट टाइप KURT एंड गिव दी डेटा पॉइंट। स्क्यूनेस के लिए स्क्यू करो एंड डेटा पॉइंट। अच्छा,
कर्टोसिस के केस के अंदर व्हाट वाज द वैल्यू 0 ऐश्वर्या कर्टोसिस के केस में क्या वैल्यूज होती थी 0.3 क्या होता था वो? अच्छा नहीं नॉर्मल के लिए तो 3 होता था 3 प्लस एंड आई एम फॉरगेटिंग आई जस्ट चेक इट आउट गाइस जस्ट स्किप माय माइंड कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है गाइस कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका स्क्यूनेस जो है वो 0 होता है और कर्टोसिस जो होता है वो एनीथिंग लेस देन 3 इज बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है 3 ये ऐसे है मोर देन 3 ये ऐसे है तो मोर देन 3 हो गया आपका लेप्टोकर्टिक आ गया याद आ गया 3 हो गया आपका योर मीसोकर्टिक एंड ये हो गया प्लैटिकर्टिक दिस इज अ प्लैटिकर्टिक क्लियर है गाइस यस नो in case to find out skewness and kurtosis the command that you need to give is just skew and skew देते के साथ ही you want the distribution तो आपको distribution देना है it wants the numbers just give it all the numbers and press enter you will get the skewness of the data similarly kurtosis के लिए just type KURT tab the data kurtosis जो होता है वो एक normally distributed वेरिएबल का कॉन्टिन्यूस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल जो है उसका कर्टोसिस जो होता है वो 3 होता है कि जो स्टैंडर्ड जिस तरीके से आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कर्टोसिस 3 होता है एंड बेसिकली इट इज मेसोकर्टिक एंड क्योंकि ये सिमेट्रिक है अराउंड बिल्कुल सिमेट्रिक है राइट एंड लेफ्ट बिल्कुल सिमेट्रिक है तो इसकी सिमेट्री 0 होती है अगर इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज लेस देन 3 as kurtosis तो वो प्लैटिकर्टिक की तरफ जा रहा है एंड इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन 3 तो वो लेप्टोकर्टिक की तरफ जा रहा है कि सारी वैल्यूज जो है बहुत पास है कंसंट्रेशन बहुत पास है और अगर प्लैटिकर्टिक है तो कंसंट्रेशन बहुत वाइड है समझ में आया गाइस रीजन ना स्टैंडर्ड एरर भी देख सकते हो काउंट बाय द वे गाइस काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कई बार काउंट करने के लिए कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप सिर्फ काउंट का कमांड दे देते हो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती ठीक है तो मैं सिंपल काउंट का कमांड दे सकता था दैट काउंट की कितना है एंड ऐसे ही काउंट इफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है काउंट इफ में आप और भी ज्यादा कमांड दे सकते हो कि अच्छा कौन से काउंट करना है और कौन से काउंट नहीं करना है ठीक है दीज आर इंपॉर्टेंट कमांड जो अगेन हमें अभी यूज करनी है एंड गाइस आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर देखा है क्या अभी तक स्टैंडर्ड एरर सुना अभी तक okay there is another thing which we will do in the next class as well standard error which is what guys what is standard error come on guys standard error standard deviation this great what we will do is we will abhi to we will go into distributions right now but before doing all of this okay because these are very important concepts these are extremely important concepts क्योंकि standard error भी important होता है and ये तो population का होता है ऐसे हम सैंपल का भी देते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं व्हेन यू गो इनटू हाइपोथेसिस अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ में आ गई तो आपको इकोनोमेट्रिक्स भी समझ में आ गई ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स आपको मेजर पोर्शन जो आपका लास्ट पोर्शन होगा स्टैटिस्टिक्स का वो भी आ गया इट इज द फ्रूट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ therefore I will go slow I mean even if you have to take a couple of extra classes I don't mind but these concepts should be absolutely clear because until unless these concepts are clear you will make my life difficult in the next semester so I want to ease out my life because usually I never used to take this course up this time I'm taking this course up because of the fact that I want your fundamentals to be strong in data analysis so that these fundamentals can be taken care of in the econometrics so जो भी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता I will assume कि जीरो के साथ चल रहे हो तो भी you will be able to manage and if you want to fast pace your pace कि अच्छा slow चल रहे हैं तो there is a lecture that I'll send on the group जो मेरा econometrics का lecture है वो I'll send it to you that will clear out all these issues कि अच्छा ये divide by n-1 क्यों होता है ये s क्यों होता है and your hypothesis testing कैसे होती है उसका मेरे पास मेरे 2-3 lectures हैं I'll send you those ठीक है यू कैन इनफैक्ट पहले वो देख लेना फिर क्लास करें देन नाउ आई एम स्लाइटली टच बेसिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी अगेन क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे रैंडम वेरिएबल आपको बताना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है and because we need to do those distributions as well we binomial has Garima done these distributions या इसमें भी होगा स्टैट्स में भी है ना ऐश्वर्या
बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ आई विल नॉट टीच यू द मैथ्स ऑफ इट, मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसकी, मैं इसका एसेंस बताऊंगा कि यूज कब होता है, सो दैट आपको रटने की जरूरत ना पड़े, यू कैन इजिली सी द एक्सपेरिमेंट एंड टेल कि अच्छा ये इसका जो आउटकम होगा वो बायनॉमियल ही होगा या इसका आउटकम जो होगा वो पॉइजन ही होगा। इनफैक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नूली। अगर आपको बर्नूली पता चल गया कि बर्नूली कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी की सारी डिस्क्रीट अपने आप ही ऑलमोस्ट सारी डिस्क्रीट अपने आप निपट जाती है अगर आपको बर्नूली प्रोसेस पता है तो। और बर्नूली प्रोसेस इज ऑल्सो द बैकग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ कैट क्वेश्चन, स्पेशली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर बर्नूली यूज होता है, ठीक है। तो बर्नूली इज समथिंग दैट वी विल बी कवरिंग बर्नूली प्रोसेस, एंड आई विल नॉट गेट इनटू द मैथ साइड ऑफ इट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हो, स्टैटिस्टिक्स में आप निकालते हो कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि उसको यूज कब करना है एंड उसको हम एक्सेल पे कैसे करें। नाउ बिफोर डूइंग दैट व्हाट वी नीड टू सी इज दैट जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के दो ही आउटकम्स हो सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के। एक वो एक्सपेरिमेंट है जिसका आपका आउटकम पता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग ऑन द 7th फ्लोर ऑफ DLF एंड आई प्लान टू डू एक्सपेरिमेंट कि मैं विंडो तक जाता हूं और नीचे कूदता हूं। तो इज दिस अ रैंडम, विल इट लीड टू अ रैंडम इवेंट और विल इट लीड टू अ डिटर्मिनिस्टिक इवेंट? उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, उसका आउटकम एक ही होगा। कम ऑन गाइस, इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक। 7वें फ्लोर से कूदोगे तो सिर्फ मतलब भगवान ही बचा सकता है, उसके बाद तो और तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए जब भी आपका डिटर्मिनिस्टिक, और यूजुअली डिटर्मिनिस्टिक आउटकम्स जो है यूजुअली साइंस में ज्यादा आप कर सकते हो, सोशल साइंसेज में यू डू नॉट हैव दैट लिबर्टी, इसलिए थोड़ा इम्परफेक्ट, इट्स एन इम्परफेक्ट साइंस, ठीक है। सो इफ द आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड एंड बार बार आप करोगे तो यू कैन रेप्लिकेट इट, स्केलेबल है। यू माइट, अगर फ्यूचर में अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू क्या कहते हैं वेंचर कैपिटल, एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस एंजल इन्वेस्टिंग वाली फील्ड में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स देखते हैं वो देखते हैं कि अच्छा आपका आइडिया कितना स्केलेबल है, हम उसको उठा के उसको रेप्लिकेट करके कितनी जल्दी से आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और वो तब होता है जब आपको पता है कि अच्छा ये सब करके ये आउटपुट मिलेगा बॉस, और हमें पता है कि ये आउटपुट मिल जाएगा 100%, तो दैट इज अ स्केलेबल है। तो डिटर्मिनिस्टिक जब आपका एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका आउटकम आपको पता होता है। रैंडम के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि द आउटकम्स कुड बी मेनी, एंड जब आउटकम्स मेनी हो सकता है, दैट मीन्स अगर आपने जैसे कॉइन टॉस करा तो आउटकम आपको पता है कि 2 आउटकम है, डाइस को आपने रोल किया तो आपको पता है कि आपके, ठीक है। तो अब आपको आउटकम्स जो हैं जब आपको पता है कि काफी सारे हो सकते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ सकती है। अब आउटकम्स जो हो सकते हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, और आउटकम्स जो हो सकते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट आउटकम फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 एक डिस्क्रीट, या 1 2 3 4 5 6 ये डिस्क्रीट आउटकम्स है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया कितने रन मारेगा, या इवन चलो इंडिया कितने रन मारेगा एक पर्टिकुलर मैच में, वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। वो हो सकता है कि वो 0 भी हो, 0 तो खैर थ्योरेटिकली नहीं पॉसिबल, हो सकता है बहुत कम अमाउंट हो और हो सकता है बहुत बड़ा स्कोर हो। तो दीज आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। तो या इंडिया का जीडीपी इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कुछ भी कोई भी वैल्यू, कोई भी डेसिमल वैल्यू तक आ सकती है, ठीक है। सो whenever you have a random experiment where the outcome cannot be predicted in advance, and you need those different values at which different बहुत छोटी probability होंगी, तो that is a random experiment। पहली बात तो वो random experiment है जहां पर आपका outcome नहीं आ सकता, और आउटकम जहां आपको पता है कि आउटकम इन द सेंस कि 2 ही ये आउटकम है या 6 ही आउटकम है, तो वो डिस्क्रीट हो जाता है, एंड अगर वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज ले सकता है तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाई इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड एक एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओमेगा से वी रिप्रेजेंट इन स्टैटिस्टिक्स, in general in statistics we represent the entire sample space as omega, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डाइस हमने करा तो उसके अंदर हमें ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल
इज अ फंक्शन जो सैंपल स्पेस से रियल नंबर तक लेके जाता है। ये आपकी है सैंपल स्पेस, ये आपकी सैंपल स्पेस। ये रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जो इस स्पेस को, अगर इसके अंदर कोई और आउटकम भी आ रहा होता, -3, -2, -1, इस सबको कन्वर्ट करके एक रियल नंबर की स्पेस। रियल नंबर कौन से होते हैं गाइस? व्हाट आर रियल नंबर्स? कम ऑन गाइस, एक्सट्रीमली इजी। व्हाट आर रियल नंबर्स? These are your, इस तरीके से you can see your numbers. So all the biggest concentric circle is for real numbers. Then you have real algebraic numbers, ठीक है? Then you have your rational numbers, whole numbers and natural numbers, ठीक है? तो real space जो है guys, उसको हम कैसे represent करते हैं? This is again guys very important because ये आपको maths में बहुत ज्यादा यूज आएगी। मैथ्स में तो करा होगा, that's where I'm surprised, मैथ्स में नहीं था ये चीज। रियल स्पेस, ऐसा सिंबल नहीं देखा था इस तरीके से। सो दैट इज रियल स्पेस गाइस, रियल स्पेस ही तो है। सो व्हाट रैंडम वेरिएबल डज इज, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन which basically डिफाइंड फ्रॉम, मैप करता है बेसिकली सैंपल स्पेस से रियल स्पेस के अंदर। जो भी सैंपल स्पेस है क्या करता है, सैंपल स्पेस से रैंडम वेरिएबल इसको रियल स्पेस में लेके आता है। दैट इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का यूजुअली जो नोटेशन होता है, वी यूज इट एज कैपिटल एक्स। डू रिमेंबर गाइस, रैंडम वेरिएबल को यूजुअली हम अपने स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल एक्स, बट बाकी भी आप देखोगे कई जगह यूज हो जाते हैं, बट यूजुअली हम रैंडम वेरिएबल को एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देन लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। नाउ सपोज एक ग्रोसरी स्टोर है अब वो कहता है कि यार मुझे अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है अपनी शॉप पे इम्प्रूव करना है कंज्यूमर्स का, तो उसके लिए मुझे ईज ऑफ पेमेंट देखनी है, ठीक है? तो उस ईज ऑफ पेमेंट के लिए ही सेज कि अच्छा अब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा कि कितने लोग मोड और कौन से मोड से करते हैं। अच्छा, पेटीएम से कौन करता है, गूगल पे से कौन करता है, कैश से कौन करता है। तो उसके लिए बेसिकली गूगल पे है तो उसके लिए सिर्फ स्कैन करो और हो गया, तो जल्दी से आप निकल जाओगे बाहर, ठीक है? पेटीएम करा जल्दी से निकल जाओ, कैश के लिए अलग लाइन है। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल दिस बी? और एक दूसरा बिल अमाउंट के बेसिस पे आपने सेग्रीगेट करना शुरू किया। व्हाट डेटा विल दिस बी? मोड ऑफ पेमेंट वाला। इज दिस एक्सपेरिमेंट गोइंग टू बी अ डिस्क्रीट एक्सपेरिमेंट और इज इट गोइंग टू बी अ कॉन्टिन्यूअस एक्सपेरिमेंट? वेरिएबल वाला है, ऊपर वाला डिस्क्रीट होगा, कुछ ऐसा आएगा। हमने पहले भी देखा कि पेटीएम, फिर उसके बाद हमारा कैश, फिर गूगल पे, फिर फोन पे, इस तरीके से होगा। एंड बिल अमाउंट जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज होंगे। तो इसकी वजह से आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आ जाएगा और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देन these can only take certain particular values, and let's take the example. For example, number of your pages in this particular book, it's discrete कि आपको पता है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक इतने पेजेस ही हैं। नंबर ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब, अगेन you can't divide it into 2.5 व्यूज या 2.3 व्यूज। या शर्ट्स का साइज, तो वो भी आपके वो है, डिस्क्रीट है, ठीक है? एंड दीज आर टिपिकली होल नंबर्स। तो ध्यान रखना, इट कैन ओनली टेक अ सेट ऑफ होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स यहाँ देखा, इट कैन टेक एनी होल नंबर। कॉन्टिन्यूअस विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, अगर वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी जा सकता है, जो इनफाइनाइट वाली वैल्यूज हैं। बट एट टाइम्स जो हम इंटरवल बोलते हैं कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यू इन बिटवीन दीज टू इंटरवल, इन दीज इंटरवल, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इनकम हो गया या वाटर इन अ डैम हो गया। And then we will have to move into your distributions. Now distributions is something that we will be taking up, I will be taking up in the next session as well, ठीक है? कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखती है, रैंडम आपके डिस्क्रीट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है। तुम लोगों ने ये पढ़ा पीएमएफ एंड पीडीएफ, दोनों चीजें देखिए। व्हाट इज पीएमएफ गाइस, व्हाट इज पीएमएफ एंड व्हाट इज पीडीएफ? डिफरेंस क्या है दोनों में गाइस? कम ऑन गाइस, पीडीएफ और पीएमएफ में फर्क क्या होता है गाइस? Exactly what Vatsala said. Probability mass functions are for discrete and PDFs are for continuous distributions, ठीक है? We will see। जो चाहिए probability है, देखो probability mass function
डिस्क्रीट वेरिएबल्स के केस में एंड कॉन्टिन्यूस के केस में आपका प्रॉब्लम। एनीथिंग एल्स गाइस? क्लियर है? आज बेसिक्स क्लियर हो गए। नाउ गाइस, tomorrow I can't take a class because tomorrow all of us have to, all the teachers have to go to college. But on Sunday afternoon, I want a class because I want with you to revise these concepts. ठीक है? That's not going to be a direct class for data analysis, but it's going to be kind of a revision of what Ashwarya ma'am has done and Garima has done. ठीक है? Because I want all the three to be on the same page at the same level so that we can do both hypothesis testing आपके तीनों जगह से हो जाए, हमारे साथ भी हो जाए, econometrics में भी होगी, and you will also have it in stats. ठीक है? So I might need an extra class guys. मंडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं क्योंकि मेरा बाकी सारे कोर्सेज खत्म हो गए, सो ओनली और कोर्स कुछ। सो मंडे वी कैन हैव इट ऑन मंडे एज वेल। सो यू नीड टू प्लान इट गाइस, नेक्स्ट 2 weeks I need at least 2, क्योंकि आई एम डूइंग दिस एक्स्ट्रा पोर्शन, so I need at least 2 extra classes, 2 hours to cover. So you need to find out time and let me know. Sure. Okay guys, thank you very much. Thank you Ashwarya. Yes ma'am. Your last Friday of November. Just check उस दिन छुट्टी ना हो। पुराने वाले पेपर्स चेक कर लो उसका DU के, it will be based on that, but it will have more of R guys, so be prepared with your R, 26th of November में। So be ready with your this thing R, because we'll be putting a lot of emphasis on R. Excel भी होगा but R पे ज़्यादा होगा, ठीक है? And do the hypothesis testing वाला portion ठीक से, because it will be asked, ठीक है, in all of your courses. So do let me know guys the extra class time. I need at least 2 more to finish up the section which is overlapping the other 2 courses. Okay guys, thank you very much. Thank you Ashwarya.